السلام علیکم جی، ویلکم بیک جی ساڑے یوٹیوب چینل وچ۔ اج دی جڑی ویڈیو ہے میں امید کرنا کہ تُساں پسند ہوئی سی۔ اج دی ویڈیو جڑی ہے جی وہ ساڑے گراں وچ مسجد دی تقریباً 200-250 سال پرانی۔ اج دی ویڈیو جڑی ساڑی ہے جی اج اساں اس نے پر ویڈیو بناساں تے امید ہے کہ تُساں کی جڑی ساڑی ویڈیو سی پسند آسی تے اچھو تُساں کی اپنی مسجد نا ریویو دی ہے اور اس نے ہسٹری نے بارے تُساں کی دسی ہے۔ اے جی مسجد دے اندر اساں آ گئے ہاں۔ اے مسجد دے اندر سارا ریویو ہے جی ماشاءاللہ۔ ہے جی مسجد نسینا کیونکہ اندر ویڈیو بنائی سی بولی نہ سکیا کیونکہ اندر اتکاف بندے بیٹھے تو پھر جڑا نا وہ ڈسٹرب ہونے اس وجہ تو میں نہ بولیا۔ تو جڑی بھی مسجد نے اندر جڑا بھی کام ہویا نا وہ تقریباً 200 یا 250 سال پرانا ہی ہویا تو اجے تک اسے حالت ہی چاہ کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اس نے اور اگر سے نال جڑی ہے نا ڈیٹیل اساں دساں۔ ہاں جی اساں فیملی جڑا نا وہ مسجد دی چھت پر آ گیا تے اج نے ساڑے بلاک نا جڑا حصہ بنسو نا جی وہ طیب صاحب بنسو تے وہ اج تساں کی اس مسجد نے بارے نا سارا تفصیل نے بارے دسو تے اچھو ہن جلیہ ملنے ہیں طیب صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب اور یہ مسجد ہے اس کی تعمیر کا آغاز جو ہے تقریباً 2.5 سال پہلے ہوا اور جہاں تک میری معلومات ہیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے اس کا اختتام یہ مسجد تقریباً 1800 کے شروع میں جو ہے یہ مسجد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اور اس کو کمپلیٹ کرنے والے جو شخص تھے ان کا نام تھا مرزا سکندر جن کی قبر یہاں میں موجود ہے مسجد کے اندر، جن کی مسجد کے صحن میں قبر موجود ہے۔ اور اس مسجد کا جو ڈیزائن ہے وہ دلی سے آیا تھا اور اس طرح کی مسجد آپ نے شاید دیکھی ہو دلی میں بھی موجود ہے جو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس مسجد کی تصاویر بھی پڑی ہیں تو اس کا ڈیزائن وہاں سے آیا تھا دلی سے اور اس کے جو آرکیٹیکچر تھے سارے جو اس مسجد کو جو بنانے والے تھے وہ بھی وہیں سے آئے تھے، دلی سے آئے تھے اور ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس قریب میں پہاڑ ہے تو یہاں پہ پتھر ہی پتھر ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو اس علاقے کی سب سے قدیمی مسجد ہے یہ۔ اب یعنی کہ اچکیاں سے لے کر چندی مصطفیٰ تک اور یہاں سے دروالے سے انوار آپ چلیں تو اس علاقے کی اس ایریے کی سب سے قدیمی مسجد ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے سب سے یعنی کہ اس پورے ایریے میں سب سے پہلے جمعہ جو سٹارٹ ہوا وہ اسی مسجد میں سٹارٹ ہوا۔ یہاں پہ تقریباً 1910 میں جمعہ سٹارٹ ہوا۔ آپ کے جو خطیب ہیں ہمارے قاضی ذوق محمود صاحب ان کے دادا جان نے یہاں پہ جمعہ سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ خطیب تھے، پھر ان کے جو ہے وہ
वालिद ग्रामी आए, फिर उनके चचा आए, फिर अब वो यहाँ पे जुमा पढ़ा रहे हैं, और बाज़ औक़ात उनके जो साहबजादे हैं गाजी अतीक वो भी यहाँ पे जुमा पढ़ाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये 5वीं पुश्त में यहाँ पे वो जुमा पढ़ा रहे हैं। और इस मस्जिद की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी कदीमी विरसे की जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उस अहमियत को पहचानने की ज़रूरत होती है। अब ये इस मस्जिद को देखें, ये अच्छा ये जैसी अब है, ये इस तरह बिल्कुल नहीं थी, इसको बाद में तामीर किया गया है। इसके बहुत सारे जो हिस्से हैं वो शहीद हो चुके थे, तो हमने जितनी भी तामीर का काम है ये हमने खुद से किया है। हालांकि ये विरसा था, ये इसमें हुकूमत का काम बनता है कि इस विरसे की हिफाजत करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कभी भी कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया, ना ही हमें 1 रुपये का फ़ंड दिया गया कि हमने अपने तौर पर जो है वो इस विरसे की हिफाजत कर रहे हैं। अब इस मस्जिद का जो सहन देख रहे हैं, ये पहले इस तरह नहीं था, बहुत थोड़ी सी जगह थी, और हमने फिर यहाँ से रिक्वेस्ट की, और ये सबसे पहले तो यहाँ से जगह ली, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो मस्जिद का सहन है इसको थोड़ा खुला किया। और यहाँ पे पहले जो ये सारे वो यानी कि वो इस साइड होते थे सारी, यानी कि जो वाशरूम है और जो यानी कि वज़ू यहाँ पे किया जाता था, लेकिन अब वो सारी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और इस मस्जिद के आपने जो अंदर जो जितना भी आपने देखी है, यानी कि मस्जिद के अंदर जितनी भी हुई हुई हताती हुई है, वो अपने जो है वो असली फॉर्म है। उसमें हमने कोई भी यानी कि उसके अंदर हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की, क्योंकि हम समझते थे कि वो मस्जिद का यानी कि एक जो होता है ना कदीमीपन, वो लाजमी रहना चाहिए, तो हमने उसको नहीं छेड़ा, और छेड़ना भी नहीं चाहिए था, यानी कि उसको हमने छेड़ना भी नहीं था, क्योंकि वो अभी तक सही है, उसमें कोई भी ख़राबी नहीं हुई। ये भी एक ख़राबी की बात है कि वहाँ से 200-250 साल यानी कि यहाँ से गुजर गए, फिर भी वो उसकी जो ख़ताती हुई भी थी उस दौर की, उसमें ज़रा भी ख़राबी यानी कि पेश नहीं आई। बाहर से जो रंग रोगन था वो ज़ाहिर सी बात है, बारिशें हुई बाद में, यानी कि यानी कि वर्ल्ड वार में भी ये मस्जिद शहीद हुई, उसको शहीद किया गया। और सेकंड वार बाद में फिर इस मस्जिद को ये है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तो इसकी वजह से जो इसका बाहर का हिस्सा है वो हमें इसकी तामीर यानी कि इसमें यानी कि काम किया, और इसमें यानी कि बेहतरी लाई, लेकिन जिसका जो अंदर सहन है, जो मरकज़ी सहन है, उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि हम समझते थे कि जिसका जो एक कदीमीपन है वो लाजमी रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के विरसों को यानी कि देखेंगे, और इस मस्जिद का भी यानी कि इस मस्जिद का भी विज़िट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे लाजमी आएंगे, और इस तरह की और जगहों को जो है वो डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हमारा इस तरफ ध्यान नहीं होता। अगर हमारा इस तरफ ध्यान नहीं होता, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल सोई हुई है, उनका भी बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि हमारे कदीमी वैसे किस हाल में। और हाँ जी, मैं अब क्या कह सकता हूँ अपनी गवर्नमेंट के बारे में, कभी भी तवज्जो नहीं दी गई इस मौजू पर। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी यानी कि मैं इल्तमास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो कदीमी विरसे हैं आप उन पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमारी ये तारीख़ है, हमारी हिस्ट्री है, आप अपनी हिस्ट्री से अलग नहीं हो सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी विज़िट करें, और अपनी फैमिली को भी साथ लें। और इसके अलावा कल ईद है, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ आप अब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी दोस्तों, उम्मीद ही कि तुसेंगी अज दी वीडियो पसंद आई होसी मेरा तैयब साहब नाल, ते कल फिर सुना हाज़र होसां नवी वीडियो नाल, ते हुण दिओ इजाज़त, अल्लाह सोने ने वाला है। कल मिलसां नवी वीडियो नाल, और सारें अगर रिक्वेस्ट ही कि साढ़े चैनल की सब्सक्राइब करो, और अच्छे कमेंट करो, और कमेंट करो कि दसो कि असां किन्ना चीज़ां पर वीडियो बनाई है। ते अल्लाह सोने ने वाला है।